Hello students, let's talk about one important topic of the chapter Our Constitution, that is the constitutional amendment. We all know that Indian Constitution is subject to amendment. Indian Constitution is both rigid and flexible. This means that our constitution makers has made a room for bringing about a change in the constitution. So as per the need and circumstances, we have the power to bring about a change in the constitution. Now the question is, who has the power to bring about a change in the constitution? Who has the power? Parliament. Only the parliament has the power. Article 368 of the Indian Constitution. You all know that our constitution has 22 parts, and in every part there are several articles. One of the article is 368. If you read article 368, it's clearly mentioned the power of parliament to amend the constitution and procedure. Okay, so it is the parliament who has the power to amend the constitution. Okay, article 368, power of parliament to amend the constitution and procedure. Therefore, and through three different ways, the parliament can bring about a change in the constitution. Okay, by simple majority, by special majority, as well as by special majority and ratification by states. So today we shall see these different types of method through which we bring about a change in the provision of the constitution. See, amendment by article 368. The parliament made amendment through three ways: by simple majority, by special majority and by special majority and ratification by the states. एक चीज आप याद रखेंगे कि ये तीन मेथड अलग अलग प्रोविजंस के लिए, मतलब कुछ प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जिसको आप सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू चेंज कर सकते हैं. ओके, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसको चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, एंड देयर आर सर्टेन प्रोविजन which require special majority and ratification. Ratification means approval by the states legislature. Now let's talk about these three method of amendment. First of all, talks about simple majority. See, certain provision of the constitution can easily be changed by passing the amendment bill by simple majority, which means the bill should be approved by a majority. Majority, that is 50% plus 1 of the members present and voting in both the houses of the parliament. देखिए, हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा. तो जितने भी लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट मेंबर है ना, तो पहले क्या होगा कि एक बिल प्रेजेंट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या चेंजेस लाना है, किस प्रोविजन को चेंज करना है, उसका एक बिल तैयार किया जाता है, फिर वो बिल को पास करवाया जाता है ना. सिंपल मेजॉरिटी, अगर वो प्रोविजन, इफ दैट प्रोविजन रिक्वायर सिंपल मेजॉरिटी, तब उसको मान लीजिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया. तो लोकसभा में मान लीजिए उस समय 545 मेंबर्स है, तो 545 इंटू 50% प्लस 120 से 273 मेंबर्स कम से कम अगर उसको पास कर दिए, तो देन द बिल विल बी ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा. फिर राज्यसभा मान लीजिए एट दैट टाइम देयर आर 245 मेंबर्स इन राज्यसभा, तो देन एटलीस्ट 123 मेंबर हैज टू पास द बिल. ओके, 245 इंटू 50% प्लस 1 कितना हो गया? 123 मेंबर्स. 123 मेंबर्स कम से कम अगर पास कर दिए, तब फिर वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, एंड आफ्टर रिसीविंग द एसेंट सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, देन द चेंजेस विल बी मेड इन द पार्लियामेंट. तब वो चेंज, सॉरी, नॉट इन द पार्लियामेंट, चेंजेस विल बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो certain provision of the Indian Constitution requires simple majority where the bill has to be passed by 50% plus 1 of the total membership of both the houses of the parliament. Okay, then see special majority. कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसको पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसे पास कराना थोड़ा मुश्किल होता है ना. स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है कि ठीक उसी तरह से अमेंडमेंट, एक बिल लाया जाएगा कि क्या चेंजेस लाना है, किस प्रोविजन को चेंज करना है. अगर वो प्रोविजन रिक्वायर करता है स्पेशल मेजॉरिटी,
है ना, तब फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। तो लोकसभा में मान लीजिए वो बिल गया तो कितना से पास कराना होगा स्पेशल मेजोरिटी में, नॉट 50% + 1, हियर इज 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। यहाँ पे चाहिए आपको द बिल हैज टू बी पास बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। तो सपोज इन लोकसभा देयर आर 545 मेंबर्स प्रेजेंट, देन इंटू 2/3 कितना हो गया 363 मेंबर। तो दैट मीन्स कि एटलीस्ट 363 मेंबर्स मस्ट हैव टू पास दैट बिल, है ना। 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके देन इट इज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा। राज्यसभा 245 मेंबर्स, व्हाट इज द 2/3 ऑफ 245, 163। तो एटलीस्ट 163 मेंबर्स देन हैव टू पास दैट अमेंडमेंट बिल, है ना। तो लोकसभा से 2/3 दैट मीन्स 363 मेंबर ने पास किया, राज्यसभा ने 163 मेंबर से पास किया, तब जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास, एंड आफ्टर रिसीविंग द एसेंट सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट देन द चेंजेस विल बी इफेक्टेड इन दैट प्रोविजन इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख रहे हो ना आप, सिंपल मेजोरिटी में 50% + 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड इन स्पेशल मेजोरिटी more than 50% + 1, that is 2/3 of the total membership of each houses of the parliament will have to pass the amendment bill, then it would be transmitted to the president. तो that is a difference। सिंपल मेजोरिटी में आराम से पास हो जाएगा, 50% + 1 ज़्यादा नहीं है, 2/3 ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए रिजिड बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि कुछ प्रोविजन को चेंज करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, थोड़ी डिफिकल्टी होती है ना, इसीलिए इसको रिजिड भी बोला गया, रिजिड विच कैन नॉट बी इजिली चेंज। तो सर्टेन प्रोविजन कैन बी चेंज थ्रू स्पेशल मेजोरिटी। उसके बाद आ गया आपका, देन देयर आर सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिक्वायर्स बोथ स्पेशल मेजोरिटी एंड रैटिफिकेशन। मतलब पहले कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसको आप स्पेशल मेजोरिटी से पास करने के बाद फिर रैटिफाई करवाना पड़ेगा बाय द डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ अ कंट्री। तो स्पेशल मेजोरिटी से मान लीजिए पहले पास हो गया, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है आप जान गए हो। स्पेशल मेजोरिटी से जब पास हो गया तब वो बिल जाएगा हर स्टेट के लेजिस्लेचर में। यू नो दैट इन एवरी स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री देयर आर लेजिस्लेचर, है ना, विच इज अ मिनी पार्लियामेंट विच मेक्स लॉ फॉर देयर ओन रेस्पेक्टिव स्टेट। In every state there are legislature, then the bill has to be passed from the legislature of each state। और अगर जितने टोटल लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है इंडिया में, उसका अगर हाफ से ज़्यादा लेजिस्लेचर ने अगर उस बिल को पास कर दिया तब फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, साइन होगा प्रेसिडेंट का, तब वो बिल में चेंजेस आ जाएगा। तो ये तो और डिफिकल्ट है। अभी 28 स्टेट लेजिस्लेचर है इंडिया में, यानी कि बिल को कम से कम 15 स्टेट लेजिस्लेचर से पास करवाना पड़ेगा, मेजॉरिटी, है ना। मेजॉरिटी से अगर मेजॉरिटी जितने मेंबर्स थे उसके मेजॉरिटी अगर पास कर देते हैं 15 स्टेट लेजिस्लेचर से, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल हैज टू बी पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी, देन इट विल बी सेंट टू ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर्स, एंड इफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज पास द बिल देन इट वुड बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। तो ये तो और डिफिकल्ट है ना, इससे पास कराना तो और मुश्किल है। इसीलिए बोला गया आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, सर्टेन प्रोविजंस कैन इजीली बी चेंज एंड सर्टेन प्रोविजन requires requires a long process। Okay, so these that's the differences among simple majority, special majority and ratification। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा एग्जांपल कि कौन कौन से प्रोविजन को हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से चेंज करते हैं, किसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और किसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी एंड रैटिफिकेशन। देखिए, देयर आर सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन whose changes require simple majority, जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड अमेंडमेंट है, क्रिएशन और रिमूवल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इफ द पार्लियामेंट वांट्स टू चेंज द नेम और बॉर्डर ऑफ स्टेट, okay, if the parliament wants to change the quorum, if the parliament wants to make some changes in rules and procedures, so such type of changes can be brought only through simple majority। Then if parliament wants to bring about a change in the fundamental rights, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ओके, तो सच टाइप ऑफ चेंजेस, है ना, द चेंजेस इन दीज एस्पेक्ट्स कैन बी ब्रॉट ओनली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, देन इफ द पार्लियामेंट वांट्स टू मेक चेंज इन द एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और वांट्स टू मेक सम चेंज इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और
द पार्लियामेंट वांट्स टू मेक सम चेंजेस इन द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में, उस पावर से रिलेटेड अगर कुछ चेंजेस लाना होगा ना, तब फिर यू हैव टू पास द अमेंडमेंट बिल बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। ठीक है, तो इफ the parliament wants to bring about certain changes in the distribution of power between the center and the state, then the bill requires both the special majority and ratification by the state legislatures. So these are some of the example of those provisions which can be changed either by simple majority, special majority or by ratification. तो टाइम टू टाइम हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू और स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू कई बार बदलाव लाए हैं। 100 से ज़्यादा बार हम लोगों ने छोटे बड़े अमेंडमेंट हमने लाए हैं। देख लीजिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में कि कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट विच वी हैव मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन 1951 द फर्स्ट अमेंडमेंट वाज मेड। अमेंडमेंट जान रहे हो ना, चेंज को बोलते हैं। पहली बार हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में माइनर चेंज लाए थे 1951 में। देन इन 1956, then 1976 where we added socialist and secular to the preamble. Then in 1978 right to property was deleted from the list of fundamental rights. Then in 1985 anti-defection law was formulated by 52nd Amendment Act. Then in 1989 61st Amendment where the voting age of the citizen was reduced from 21 years to 18 years. Then 1992 again we made amendment where we provided powers to the village panchayat and urban local bodies. Okay, then 2002 very important amendment, 86th amendment, where right to education, this fundamental right was added. Okay, and free and the provision was made for free and compulsory education to all the children between the age of 6 to 14 years. Okay, then in 2016 GST टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज 101st अमेंडमेंट. देन लेटेस्ट 2019 बाय 103rd अमेंडमेंट 10% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट सिविल सर्विस हैज़ बीन गिवन टू द इकोनॉमिकली वीकर अपर कास्ट. तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट हैज़ ब्रॉट changes in the system of our country as well as in the life of the people. Now see the process of constitutional amendment. The bill has to be passed from the either house. If the bill is introduced in the Rajya Sabha, after being passed from the Rajya Sabha, it is sent to the Lok Sabha. After being passed from the Lok Sabha, it is transmitted to the president, and when the president signs the bill, then the bill becomes a act या bill becomes a law. उस समय bill फिर वो कानून बन जाएगा, वो चेंज आ जाएगा, है ना. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. लास्ट पॉइंट सी, द बिल बिकम्स एन अमेंडमेंट एक्ट आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट. तो ओनली, है ना, सिर्फ बिल को पास कराने से नहीं होगा. बिल को जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे, ऐसे प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं इंडिया में, उतना पावर नहीं है प्रेसिडेंट का पास सो दैट ही कुड विथ होल्ड द बिल. प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन द बिल, is bound to sign the bill. So only after receiving the assent of the president, the bill becomes an act. The bill becomes an constitutional act. Okay, students? Thank you.